So today we are going to deal with one very important organ, that is liver. Liver is the largest gland, second largest organ in the body. Liver, more important information is that liver is a long question. We start with the development of the liver. Here is septum transversum. Here is the developing foregut. Here is the developing midgut. This is the junction. Junction of foregut and midgut. Just before that junction arises hepatic bud. Hepatic bud. So hepatic bud arises near the junction of foregut and midgut, but more towards the foregut. Hepatic bud. This hepatic bud gives cystic bud, from which gallbladder develops. Cystic bud. And this is septum transversum. So what is going to happen is, this hepatic bud will go here and now divide into right and left buds. Right bud will give rise to the right lobe, left will give rise to the left lobe. Cystic bud will give rise to gallbladder. Now to summarize the development of the liver. The septum transversum forms the Glissen's capsule of the liver. Glissen's capsule of the liver. And the fibrous network. So the capsule and the fibrous network inside is formed by septum transversum. Then what does the hepatic bud form? Hepatic bud, it forms hepatocytes. The hepatocytes are formed from the hepatic bud. And the third thing is, then inside the septum transversum are broken umbilical and vitelline vein. Broken umbilical and vitelline veins, which contribute to the formation of sinusoids of the liver. So this, in essence, is the development of the liver. Okay? ये एक डायग्राम निकालना है, दो डायग्राम निकालने हैं आपको, rather. Or you can, if you want to draw only one diagram, then it should be like this. सम्यक ये क्या है? इधर आ जाओ पहले बेंच में. मयंक ये क्या है? लिवर. आ जाओ पहले बेंच में. दोनों फास्ट. तुमचा मधला मुलगा बीच वाला लड़का खड़े रहो. ये क्या है? हाँ, very good. You are such a good student that you should sit here. You also come here. Come. विदिता, उनको जगह देना. Because वो लोग इतना बेंच हिलाते हैं ना कि मेरा शूटिंग नहीं हो जाती. Second bench. आप बैठो. You can sit. So now we start. Now we start with the liver anatomy. Okay? The liver anatomy में ये दो डायग्राम्स आपको निकालने को आने चाहिए. हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, ये दो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करने के बाद they'll be coming to each student and checking whether you are drawing it correctly. This is the anterior view, this is the posterior view.
पेन, देखो कागज, कागज का कश्ती बनाने के लिए रखा है बारिश में। सो एंटीरियर व्यू, दिस इज द एंटीरियर व्यू। सो एंटीरियरली आपको क्या दिखेगा? यू विल सी वन लिगामेंट, क्या नाम है उसका? यस मयंक, सम्यक, इसका नाम क्या है लिगामेंट का? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। देखो ऐसे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट निकालना है, कागज दे रहा है उधारी पे, सब लोग उसको कागज दे दो, पेन मेरे से ले लो, तेरे लिए लेके आया मैं। ये कौन सा लिगामेंट है? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर यहाँ पे ऐसे आपको नीचे ड्रॉ करना है एक राउंड, ये राउंड के अंदर एक डॉट रखना है और इधर लिखना है लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस। ओके, और एंटीरियर व्यू में एक चिंटू सा ऐसा, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या गॉल ब्लैडर का? फंडस, लोअर पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर which is visible below the inferior border is called as fundus। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को पहले ही सॉरी बोलता हूँ आपको। ये सुपीरियर बॉर्डर है ना, एकदम ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा ऐसा राइट लंग के लिए, फिर थोड़ा बीच में डिप्रेशन पेरिकार्डियम के लिए, फिर थोड़ा ऊपर ऐसे लेफ्ट लंग के लिए। यहाँ पे पेरिकार्डियम आएगा, यहाँ पे राइट लंग आएगा, यहाँ पे लेफ्ट लंग आएगा, बिकॉज लंग आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। सो यू हैव सीन इनसाइड द लंग दैट हाउ द लंग base is concave, okay, this concave, okay, so ये ऐसा होता है। Now talking about the posterior, so liver is divided into two lobes by falsi। आपका लेक्चर कौन से टॉपिक पे इसके बाद नहीं है ना? अभी ऐसा नहीं कि लिवर ही सिखाने वाले हैं और आप सोच रहे बाबा ये तो सब स्टोरी बोल दिया होगी, मैं क्या सिखाऊं? So this is right lobe and left lobe. It is divided into right and left lobe by falciform ligament anteriorly, ligamentum teres inferiorly, ligamentum teres inferiorly। ग्रंथ किधर है? ligamentum teres inferiorly, ओके। अभी posteriorly देखते हैं। तो ये जो falciform ligament है ये ऐसे यहाँ पे आता है, देखो अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। अभी एक मिनट इधर देखो, एक लाइन फाल्सिफॉर्म लिगामेंट पे से ऐसे ड्रॉ करना है लेफ्ट की तरफ, बिकॉज अभी ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इधर ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, पॉइंटेड साइड इज लेफ्ट, तो यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से वापस इधर आना है, ओके, फिर नीचे जाना है, ड्रॉ नहीं करने का है, सब में देखने का है, फिर नीचे जाना है, मैं आपको 1 मिनट दूंगा ड्रॉ करने के लिए, फिर नीचे जाना है, फिर हॉरिजॉन्टल जाना है। This is porta hepatis, this is fissure for ligamentum venosum। ये हमारा ligamentum teres है जो नीचे से आ रहा था, ligamentum teres। ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर ऐसी रहेगी, पीछे के बाजू आया है तो आपको दिखेगा, ये जो नीचे का पार्ट है ये आगे से दिख रहा है। अभी ये ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे, ओके। जस्ट सी द सीक्वेंस। फाल्सिफॉर्म यहाँ से चालू किया, ऐसे 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 2 लाइंस पहले यहाँ ड्रॉ करो। सो नाउ यू नो कि आपको वापस इधर आना है। देन स्टार्ट फ्रॉम हियर, गो लाइक दिस, दिस इज लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, कम बैक हियर एग्जैक्टली टू द सेम स्पॉट, देन गो डाउन, दिस इज फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ओके। देन व्हेन यू गो डाउन, देन गो टू द राइट, दिस इज पोर्टा हेपेटिस, लिवर का पोर्ट है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे इज अ पोर्ट, पोर्ट में से चीजें आती है जाती है, तो लिवर की जो हिपैटिक आर्टरी है, बाइल डक्ट है, ओके, ये सब कुछ यहाँ से जाएगा या बाहर आएगा? हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, इनका ये पोर्ट है, पोर्टा हेपेटिस, इसमें ये 3 चीज रहेगी, ओके। Then here fissure for ligamentum venosum. You have studied what is ligamentum arteriosum. That is for diverting the blood
प्रगति. Ligamentum arteriosum is for diverting the blood from aorta bypassing the lung. Bypassing the lung. बराबर है कि नहीं? Ligamentum venosum was ductus venosus. It was meant for bypassing the blood from liver, going to the liver. Liver is not doing anything. Lung is also not doing anything. Lung is not oxygenating. Liver is not doing metabolism in intrauterine life. So to divert the blood from the lung, there is, what is there? Ligamentum arteriosum. To divert the blood from liver, from going to ये ligamentum teres है. What is ligamentum teres? Ligamentum teres is umbilical vein, the left umbilical vein. तो ये यहाँ से ऐसा ब्लड लेके सीधा आईवीसी को चला जाता है. So we don't want too much blood to go into liver because वो कर ही नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. Okay? So fissure for ligamentum venosum, porta hepatis. फिर ऐसे जाओ, फिर नीचे जाओ. This is the right triangular ligament. This is called a superior layer of coronary ligament, inferior layer of coronary ligament, and back. Come on, everybody draw. I'm giving you 2 minutes for this. Okay. So now let us talk about the lobes of the liver. एक है राइट लोब, लेफ्ट लोब. एक यहाँ पे ये लिगामेंट कौन सा है? ये क्या है? बॉर्डर. ये क्या है? ये क्या है? इंफीरियर बॉर्डर. दिस इज इंफीरियर बॉर्डर. ओनली प्रोमिनेंट बॉर्डर ऑफ द लिवर इज इंफीरियर बॉर्डर. ऑल अदर बॉर्डर्स आर राउंडेड. राउंडेड, दे आर देयर. सुपीरियर इज देयर, बट दे आर सो राउंडेड कि समझता नहीं कि किधर बॉर्डर किधर. ओके. Then this lobe here is called as quadrate lobe. Quadrate lobe between porta hepatis, gallbladder, ligamentum teres and inferior bone. Quadrate lobe. क्या नाम है उसका? Quadrate lobe. Quadrate lobe. Okay. Then here there is one lobe which is there between fissure for ligamentum venosum, no superior surface. पोर्टा हिपैटिस, यहाँ पे आईवीसी होता है. आईवीसी, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब. क्वाड्रेट लोब. कौन सा लोब? क्वाड्रेट. CAUDAT. क्वाड्रेट. CUADAT. क्वाड्रेट लोब. क्वाड्रेट लोब. QUADRAT. क्वाड्रेट and quadrate lobe. So there are 4 lobes in the liver. Okay. These 2 lobes are there inside the right lobe only. Basically, you should not say there are 4 lobes. There is right lobe and left lobe, and right lobe has 2 additional lobes, quadrate lobe and quadrate lobe. Okay. Now, let us talk about the various surfaces of the liver. उधर खड़ा रहते. मतलब यार, अभी हम लोग कौन से मकाम पे पहुंचे हैं और तुमको अभी क्या समझेगा इधर से आके? तुम मेरे को बोलना, क्या समझेगा? क्या ड्रॉ किया है? आप कौन सा ऑर्गन सिखा रहे हैं? क्या बात, ताली बजाओ उसके लिए. So now we will talk about the surfaces and borders. Borders, I said only one border is prominent. Which is that prominent border? Which is that border? Inferior border. And then there are 5 surfaces. 5 surfaces देखो. Anterior surface, superior surface, right surface. 3 surface हो गए. कौन से surface है 3? Anterior, superior and right. अभी ये पीछे का जो व्यू है, इसमें 2 सरफेसेस छुपे हुए हैं. आळस देऊ नका. प्रगति चौरसिया, आळस द्यायचा नहीं. ओके. चौरसिया में से ही मैं सिखा रहा हूँ और तुम ऐसे आळस दे रहे. इसमें 2 सरफेसेस है. ये जो सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस है. ओके. और ये जो उसके नीचे का जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ऐसा जाता है, इसके लिए उसको इंफीरियर बोला है.
इस सरफेस को बोला है इंफीरियर सरफेस, इसको बोला है पोस्टीरियर सरफेस। इज इट क्लियर? सो हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? हमें विदाउट एप्रन हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? टोटल 5 surfaces: superior, inferior, posterior, right. Okay, superior, inferior, and anterior, posterior, superior, inferior, and right. Okay, now we talk about the relations. Okay, so Mayank, whenever we talk about relations of any abdominal organ, so how are they described? Yourself. आपका नाम आप बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। आर्यन, कहाँ से हो आप? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर आए हो। तो रिलेशंस ऑफ टू एनी ऑर्गन, श्रद्धा, आर डिस्क्राइब्ड अंडर 2 हेडिंग्स एब्डोमेन में। कौन से है वो 2 हेडिंग? जिसको आंसर मालूम है हाथ ऊपर करो। आगे बैठते तो तुम एक्टिवेट हो जाता है। पेरिटोनियल रिलेशन एंड विसरल रिलेशन। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द लिवर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द लिवर। लिवर इज इंट्रापेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल और एक्स्ट्रापेरिटोनियल? लिवर इज इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल। सो लिवर पे ऐसे जो 2 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से आते हैं, लिवर को कवर करते हैं, सुपीरियर कवर करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दीज आर लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने पेरिटोनियम में भी सिखाया था। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये एल शेप कहाँ पे जाता है? स्टमक। स्टमक, ये एल शेप है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और स्टमक पे जाता है। लेसर मोमेंटम, ये लेसर मोमेंटम एल शेप में यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे किडनी होता है, यहाँ से क्या है? किडनी यहाँ पे है, यहाँ से पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर पोस्टीरियरली चला जाता है। व्हाट इज दैट? मॉरिसन्स पाउच, हिपैटो रीनल पाउच। सो यहाँ ये एरिया किडनी से रिलेटेड रहेगा, बट बीच में देयर विल बी मॉरिसन्स पाउच। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशन। फॉर्मूला ऑफ 3। फॉर्मूला ऑफ 3 सब जगह तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं रिलेशन से। लेट अस स्टार्ट सुपीरियर। सुपीरियरली एक 3 में पहला आएगा डायफ्राम, बराबर है? 1 इज डायफ्राम। आर्यन, बरोबर? 1 इज डायफ्राम, 2 इज पेरिकार्डियम एंड हार्ट, एंड 3 इज द लंग्स। लंग। इज इट क्लियर? सो सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, शेवटची बेंच तुझ्या बाजू समोर, हां. Superior surface of the liver is related to which 3 organs? Diaphragm, pericardium and heart, and lung. 3 things. Pericardium with heart, प्लुरा and lung. नुसतं लंग नाही बोलायचं, काय बोलायचं? प्लुरा and lung, pericardium and heart आणि diaphragm. झाले 3. Now let us talk about the anterior surface. अभी एंटीरियर सरफेस के लिए एक मैं ऐसा चिंटू सा इधर डायग्राम निकाल रहा हूँ। ये लंग है, वाळच दिला असतं पूर्ण मार्क, इतना नहीं बट ग्रॉसली। तो ये क्या है? मेरे सचिन सर इतने चॉक्स लाते हैं तो मैं इसको यूज करता हूँ। चलो, ये है कॉस्टल मार्जिन। कॉस्टल मार्जिन, हाँ। तो एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू 1 रिब्स, बरोबर? 2 एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ये रिब्स और डायफ्राम के बीच और लिवर के बीच में होगा डायफ्राम। डायफ्राम विल बी देयर एवरीवेयर। 3 नंबर का, इस साइड भी डायफ्राम, इस साइड भी डायफ्राम। ओके, सो अभिजीत, anterior surface of the liver is related to 3 organs. What are those 3 organs? 3 structures. What are they? 1 is ribs, 2 is सदावती,
Very good. Then diaphragm, ribs. Very good. Thank you. त्या विजडम ट्री वरती मी एक इन्व्हाइट टाकलं बघा शुक्रवार त्याला यायचंय तर रिब्स घ्यायचं असेल तर आता अभ्यास सुरू करायचा तुम्हाला प्रिलिम्सचा मेरी साइड से वापस मैं ऑफर देता हूँ कि मैं आपका पर्टिकुलर लिप सिखाने को तैयार हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्री फुकट में मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलने वाले उसकी। Three things, okay? Okay. Now let us talk about the three things related to the right surface. Right surface, okay? तो उसमें अपन तीन अलग अलग कलर्स अभी यूज करने वाले हैं। Right surface is divided into upper 1/3, middle 1/3 and lower 1/3. Upper 1/3, middle 1/3 and lower 1/3. Right surface. तो जो है डायफ्राम ऐसा आता है, डायफ्राम ऐसा। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है राइट सरफेस का रिलेशन में? डायफ्राम। देन उसके ऊपर होता है प्लूरा, बट वो 2/3 तक ही जाके ऊपर जाएगा। प्लूरा 2/3 तक आके ऊपर चला जाएगा। फिर होता है लंग ऐसे आता है 1/3 तक जाके ऊपर जाएगा। Oh, so what are the three structures? Last bench, तो मुलगा ज्याला मागच्या वेळेस पण विचारलं होतं तरी पण बाजूचा उभा राहिला, तरी तू निर्लज्जासारखा उभा राहिला नाहीस, तू बोल what are those three structures? डायफ्रॅम हे काय हिरवं आणि हे काय आहे लंग। डायफ्रॅम, प्लुरा, लंग। आता मी अजून एक गोष्ट सांगणार आहे जी तू व्यवस्थित ऐकायची। Upper 1/3 is related to diaphragm, pleura, lung. Middle 1/3 is related to diaphragm, pleura. Lower 1/3 is related only to diaphragm. Repeat कर। क्या बात है? क्या बात है? Only diaphragm only. Only म्हणायला शिकायचं बरं का आयुष्यामध्ये। One and only. You are my one and only one diaphragm. Diaphragm issue. Lower 1/3 असं बोलतो diaphragm. काय लोक रे काय जरा बोललं की इकडे तिकडे डिस्ट्रॅक्ट होत असेल। ओके, सो व्हॉट इज दिस? दुर्वी काय आहे? क्या है? क्या है? कॉस्टोडायफ्रामॅटिक रिसेस। कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस लंग को एक्सपांड होने के लिए। जब आप किसी दिन मुझे देखते हो और लिफ्ट नहीं यूज करते हो और स्टेयरकेस यूज करते हो, फिर आप धोते वाले में जब जाते हो तो आपका लंग ये यहाँ पे आता है, कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस उसके लिए। ओके, और फिर आप अगर रोज टाइम पे ब्रेकफास्ट किसने नहीं किया? कोण रे शेवटचा बेंच तो मुलगा आता आन्सर केलं, नाव काय तुझं? हा, भरत का भारत? भरत ना, भारतीय रहना चाहिए वो भारत, मैं रहूं ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। बापरे, सॉरी हा, सॉरी चुकलं माझं। तुला भारत राजाची गोष्ट माहिती आहे का? त्याच्यावर एक दिवस आपल्या स्टोरी टेलिंग होणार आहे शेवटच्या दिवशी। अरे वो फीडबॅक तुला माहिती गोष्ट? वो फीडबॅक एक ही बच्चे ने लिखा, एक कलश नाम का लड़का, उसने इज्जत से। बाकी आप लोगों को मालूम नहीं कि ईमेल कैसे लिखने का रहता है, ऑपरेट करने का। ईमेल नहीं है, कनेक्शन नहीं है, डेटा नहीं है, बटन का फोन है, ये सब प्रॉब्लम्स है क्या? ओके, तो फर्स्ट ये जो फ्लूइड कलेक्शन होता है, हाँ, तो नाश्ता नहीं किया हाथ ऊपर करो, वापस आओ।
बराबर से भारत, हाँ। तो ये लोग हॉस्पिटल कैंपस में, अच्छा इसके लिए तो हाथ ऊपर करो, ये लोग हॉस्पिटल कैंपस में विदाउट ब्रेकफास्ट किए आते हैं। तो इनमें से एक जन को टीबी होने का चांस। हाँ, ये when you are empty stomach, physiology, WBC count is lowest. When is it lowest? Low physiological variations. Physiology, बराबर है कि नहीं? When it is low, when you are empty stomach, when it rises, when you eat something. So आप हॉस्पिटल कैंपस में आए empty stomach, your WBC count जो कि अब जो 5000 के आसपास होना चाहिए वो अभी 3000 पे आके रुका है, और इधर एक ऑलरेडी टीबी का दवा के लिए आया पेशेंट, अब उसके बाद जो गया अंदर, इधर WBC बोले भाई आपने को खाने को नहीं मिला, अपन नहीं काम करेंगे। फिर इन लोग को, इनमें से एक को, सबको नहीं हो सकता, इनमें से एक को जब टीबी होगा तो एक्सरे निकालेंगे, तो प्लूरल एफ्यूजन में दिस इज द स्पेस which is first filled up. This space is first filled up in pleural effusion. एक्सरे पे आपको सडनली ये कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस ऑब्लिटरेटेड दिखता है, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो आपको, आप डायरेक्टली उसको पूछोगे भाई तो नाश्ता किए बगैर जाता था क्या मेडिकल का? रेडियोलॉजी में एक नाश्ता करने का जरा सा 5 मिनट पहले होता है, ओके, जरा 5 मिनट पहले सोने। तो राइट सरफेस हो गया कि नहीं हो गया? उधर भी 3, ऊपर भी 3, आगे भी 3। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे यहां पे होता है इसोफेक्स, यहां पे है आईबीसी। पोस्टीरियर और इंफीरियर पे 3 का रूल नहीं लागू होता है, उसमें 5 स्ट्रक्चर्स, 5 दोनों में, ओके। इसोफेगस कॉर्डेट लोब पे होता है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट क्रश नहीं बोलने, कितना भी आपका मन किया, क्या बोलेंगे? क्रश को भी क्या बोलेंगे? क्रस। बट 2 क्रस नहीं होना चाहिए, ये मेरा राइट क्रस है और ये मेरा लेफ्ट क्रस, वो बॉडी में होता है राइट क्रस। फिर आईवीसी, फिर देखो ये हमने बोला ना, यहाँ पे हिपेटोरिनल पाउच होता है, यहाँ पे किडनी होता है, वहां पे अगर किडनी है तो यहाँ पे क्या होगा? सुप्रारिन। हाँ, तो पेरिटोनियल रिलेशन बोलते बोलते अपन कहीं तो भटक गए थे, सॉरी। पेरिटोनियल रिलेशन पे वापस जाओ। द होल लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट फॉर 5 बेयर एरियाज। देखो बेयर एरियाज, देखो ये बेयर एरिया है, ये पेरिटोनियम से नहीं कवर्ड है। फिशर फॉर लिगामेंटम मेनोसम बेयर एरिया है, पोर्टा हेपेटिस बेयर एरिया है, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बेयर एरिया है, लेफ्ट ट्रायंगुलर, राइट ट्रायंगुलर बेयर एरिया है, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर बेयर एरिया। 6 बेयर एरियाज ऑन लिवर। So liver is covered by the peritoneum except for 6, और अभी मैं नंबर बोल रहा हूँ, more than 6 बोल रहा हूँ, बट वो 6 एरियाज के नाम लिखो मैं आपको। So now we studied the 5 things which are related to which surface, Purpa? Which is this surface? What are those 5 things? Stand up. Esophagus, caudate lobe where there is right crus, then IVC and supralingual. So caudate lobe and sorry, fissure for ligamentum venosus pure.
पांचवा 1 2 3 4 5 ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये अगर क्लियर हो गया ना, सो इट इज वेरी इजी टू नो व्हाट इज देयर ऑन द इंफीरियर सरफेस. देखो अगर इसोफेगस यहाँ पे है तो इसोफेगस के नीचे होता है स्टमक, बरोबर के नहीं? स्टमक ऐसा रहेगा. तो यहाँ पे क्या रिलेटेड है? स्टमक. स्टमक अगर ऐसा है तो स्टमक एंड कहाँ पे होता है? डिओडी. तो क्वाड्रेट लोब में क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडी. फिर यहाँ पे क्या है? गॉल ब्लैडर. फिर यहाँ पे क्या है? किडनी. तो कितने स्ट्रक्चर है? एक नंबर स्टमक, 2 नंबर क्वाड्रेट लोब, 3 नंबर क्वाड्रेट लोब में फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, 4 नंबर, 5 नंबर. तो ये क्वाड्रेट लोब को मत लिखो, इसको क्वाड्रेट लोब विद फर्स्ट पार्ट, देन गॉल ब्लैडर, देन किडनी, और इधर बाजू में होगा हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, बरोबर के नहीं? तो किडनी के ऊपर भी जाएगा, वो किडनी के एंटीरियरली भी जाएगा. कोलोन, असेंडिंग कोलोन लीवर के इधर जाता है, लीवर से वो ट्रांसफर बनता है, तो यहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्सर, यहाँ पे स्प्लेनिक फ्लेक्सर. सो स्प्लीन पे देयर विल बी कोलोन, दैट कोलोन इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फ्लेक्सर. लीवर के उधर जो है दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक फ्लेक्सर. सो 5 थिंग्स on posterior surface, 5 things on inferior surface. What are the 5 things on the inferior surface? Stomach, quadrate lobe with first part of duodenum, gallbladder, kidney and colon, hepatic flexure of. So this is the visceral relation. Peritoneal relations में मयंक क्या लिखेंगे हम? All the liver is covered by peritoneum except bare areas. What are those bare areas? One bare area is huge bare area on the posterior surface, which is related to suprarenal. One huge bare area on the posterior surface. Then left triangle. Then your say Titish. What is this? Fissure for लिगामेंटम वेनोसम. मृदुला, तू त्याला टिप्स देतेस. व्हाट इज दिस मृदुला? पोर्टा हेपॅटिक्स, फोसा फॉर गॉल ब्लॅडर. दीज आर ऑल बेअर एरियाज. नाउ कम्स द ब्लड सप्लाय ऑफ लिवर. ब्लड सप्लाय ऑफ द लिवर 80% इज फ्रॉम पोर्टल वेन. पोर्टल वेन, वेन, अरे वो पोर्टल वेन के अंदर सारा न्यूट्रिशन होता है. तो हम खाते पीते सब, what everything is absorbed in the intestine. The veins from the intestine unite to form portal vein. That portal vein goes inside the liver and divides. Goes inside the liver and divides. So that is, and 20% from the hepatic artery. 20% from hepatic artery. Okay. Venous drainage, hepatic veins. ये hepatic veins कैसे होते हैं? देखो ये IVC जो है ना, IVC ये ऐसे ऊपर चला जाता है, and hepatic veins उसमें 3 hepatic veins होते हैं, वो उसमें ड्रेन करते हैं. These 3 hepatic veins are the support of the liver. एक हेडिंग लिखो चलो, supports of the liver. 1.5 किलो का लीवर है, तो सपोर्ट कहाँ से मिलता है? तो लोग लिखते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट. नो, दीज आर फॉल्स सपोर्ट्स. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर, राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी, दे यूनाइट एट द राइट ट्रायंगुलर. They are false support. Main support is the 3 hepatic veins, the surrounding viscera, आजू बाजू का viscera है, and intra-abdominal pressure. They are the 3 supports of the liver. लीवर को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए एक फोर्सेप लेने का, आईवीसी के अंदर से डालने का.
और आईवीसी के अंदर से डाल के ऐसे लिवर ट्रॉफी की तरह उठाया. दिस इज हाउ लिवर इज हेल्ड इन एनाटॉमिकल पोजिशन. जैसे आईवीसी में फोर्सेप डालते हैं एंड देन यू होल्ड इट लाइक दिस. दिस इज हाउ इट हैज टू बी हेल्ड. ओके. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लिवर. हिपैटिक लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज बताया. बट बिफोर गोइंग टू अप्लाइड एनाटॉमी तो नहीं कौन है अभिषेक जरा से आपको क्या लगा एंड ऑफ सेशन गोल्स अभी कल से 9 बजे आने का. सो बिफोर आई गो टू अप्लाइड एनाटॉमी आई वांट टू टेक 2 minutes टू टॉक अबाउट हिस्टोलॉजी. तो जब लीवर आता है तो मॉर्फोलॉजी, रिलेशंस, हिस्टोलॉजी 2 मार्क, डेवलपमेंट 2 मार्क. वो मैंने आपको बताया. क्या है डेवलपमेंट? समृद्धि और development is from hepatic bud which goes inside the septum transversum and divides. Hepatic buds form hepatocytes, septum transversum forms the capsule, broken umbilical veins form the sinusoids. So as regards the applied anatomy of the liver is concerned, there is central vein, and then this is how hexagonal बरोबर. सब जगह सेंट्रल वेन. ओके. सो दिस is called as hepatic lobule. Hepatic lobule. यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रायड्स. ये सारे एंगल्स पे क्या होते हैं? ट्रायड्स. ट्रायड मतलब क्या होते हैं? उसमें 3 स्ट्रक्चर्स. 1 पोर्टल वेन्यूल, 1 ब्रांच, 1 hepatic arteriole and 1 bile canaliculus. बाइल का छोटा सा डक्ट्यूल कैनालिकुलस डक्ट्यूल. यहाँ पे क्या होता है? ऐसे सेल्स रहेंगे. हिपेटोसाइट्स ऐसे रहते हैं, बराबर है कि नहीं? हिपेटोसाइट्स ऐसे रहते हैं. दोनों के बीच में होता है साइनोसाइट्स. तो ये जो सपोज दिस इज 1 हिपेटोसाइट, दिस इज ऑन द रो ऑफ हिपेटोसाइट्स. तो ये जो ट्रायड होता है ना, ट्रायड, इसमें इनसाइड दिस ट्रायड इज हिपैटिक आर्टेरियोल. वो अपना ब्लड ऐसा छोड़ देता है इन द साइनोसॉइड विच गोज इन द सेंट्रल. तो यहाँ पे ये हिपेटोसाइट्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे ईटो सेल्स होते हैं एंड देन देयर आर कपर सेल्स. वो सब मैं भी डिटेल्स में जाने. कपर सेल्स आर देयर फॉर देयर द स्कैवेंजर सेल्स. देन जो बाइल बनता है, बाइल, वो बाइल जो बन रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में जाके यहाँ पे बाइल करता है. ओके. नाउ दिस 1 lobule which is drained by one central vein is called as hepatic lobule. hepatic lobule का डेफिनेशन क्या है? हाँ, तुस आगत वाटणारी मुलगी. What is hepatic lobule? Area drained by one central vein. What is it? Area drained by one central vein. तुझी बहीण कुठे आहे? तनिषा आली नाही का? असते बसा. drained by one central vein is called as hepatic lobule. अभी ये ट्राइंगल देखो. This is called as portal lobule.
यहाँ पे एक पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन यहाँ पे ब्लड दे रही है, यहाँ पे ब्लड दे रही है, यहाँ पे ब्लड। व्हाट इज इट कॉल्ड? पोर्टल लोब्यूल। द एरिया सप्लाइड बाय one portal venule is called as portal lobule. अभी ये देखो 1 2 3 4, यहां से हिपैटिक आर्टेरियोल जाता है ऐसे। This is area supplied by one arteriole. This is called as hepatic acinus. This is called as hepatic acinus. This is called as portal lobule. This is called as hepatic lobule. ओके तो इसमें ना आप बोले ऐसे बोलो वो पका रहे, एक तो देखो इधर जोन्स होते हैं 1 2 3। अगर पॉइजनिंग हुआ तो हम लोग जो पोस्टमार्टम में हिस्टोपैथ करते हैं तो जोन 1 में पॉइजन मिला माइल्ड पॉइजनिंग, जोन 2 में मिला मॉडरेट पॉइजनिंग, 3 में मिला सीवियर पॉइजनिंग। माल नरिशमेंट में जब हम हिपैटिक बायोप्सी करते हैं, जब हम बायोप्सी करते हैं तो वेदर जोन 1 जोन 2 जोन 3 में ग्लाइकोजन देखते हैं। डिप्लीशन कैसा होता है, पहले जोन 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। तो सेंट्रल वेन पहले यहाँ से खींचेगी फिर यहाँ से, तो उस हिसाब से डिसाइड कि हाउ मच सीवियर मालनरिशमेंट है। सो 3 थिंग्स इन द लिवर, भारत, what are those 3 things? Hepatic lobule, portal lobule and hepatic acinus. तुझ्या बाजूच्या मुलाचं नाव काय? वैभव. एरिया what कोणी होतं का? ओके ठीक आहे, बसा खाली. So you are clear about it? चला बसा. Applied anatomy 1. कंजेनाइटल एनोमलीज ऐसे ज़्यादा नहीं होता है, लीवर में एक एडिशनल अजाइगस लोब करके कभी कभी दिखता है हमको। अजाइगस लोब मत लिखो बच्चे, सम लोब में भी मिसिंग है, सब पार्ट में भी मिसिंग। लीवर का शेप ना ऐसा एकदम क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द लीवर, SGOT, SGPT and palpation. Liver is enlarged in size in hepatitis. Medical conditions: hepatitis, cirrhosis of the liver. Surgical: amoebic liver abscess, very common. Amoebic liver abscess, because सारा ब्लड इंटेस्टाइन का लीवर में जा रहा है, तो उसमें अगर अमीबा है तो वो भी लीवर में जाएगा। वेरी कॉमन amoebic liver abscess. And last is cancer of the liver. हाँ? Echinococcus कहते हैं। और मेरी तरफ से जाते जाते दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। So लीवर केवल आजकल दारू पीने से नहीं खराब होता है, लीवर चॉकलेट खाने से खराब होता है, लीवर चीज़ खाने से खराब होता है, लीवर बटर खाने से खराब होता है, मतलब अमूल बटर, घर का वो फ्रेश मेड बटर इज डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर। इधर जो लोग बैठे हैं ना, इसमें से 1 in 3 इंडियन हैज फैटी लिवर, बिकॉज ऑफ अपना डाइट। पहले अपन क्या खाते थे, भाजी भाकरी, जवार वगैरह सुना है क्या आपने? खाली जवार पफ्स खाते रहेंगे आप लोग, जवार बाजरा बंद किया सर। अभी ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये वो मैदे का ब्रेड,
So that's how fatty liver starts. So stop here. Thank you.